So now we are done with our theory part. Okay, it's all like it's totally done. We are done with our theory part. Now we'll start from today. We'll start our practicals. Okay, we'll start our practicals. So from today we are going to take one API document. Okay, today we are going to one API document. Okay, and we are going to do CRUD operations on that API document. Okay, basically API testing, manual API testing we are going to do on that particular, with the help of that API document we are going to do it testing. Okay, so manual API testing we are going to do. We are generally basically we are going to do CRUD operation with the help of that particular API document in a tool that is Postman. Okay, so I hope that all of you have Postman tool. Even if you don't have, we can navigate to that particular through browser. Okay, it is a web application, so it's okay even if you don't have desktop application, desktop version of Postman tool. It's enough if you like, it's okay. Okay, we will navigate to that particular Postman tool through browser. Okay, done. Now, yeah. Okay, so one more thing. When I'm training you something or teaching you, don't do anything in that time. Okay, why? Because just focus on screens. I will give you time. I will tell you when you have to do. Okay, so when I'm training or teaching you, please be focused. Please concentrate here in the screen. Okay, don't do anything else. Okay, now I'm just sharing my screen. Okay, I'm just sharing my screen. Let me share. Yeah. Tell me if it is visible. Is it visible? Okay, done. So now what we have to do, obviously, first we have to, one step by step, I'm going to tell you what you have to do. Okay, just write this postman.com. Okay, the moment I enter this URL, I'll be navigated to the Postman tool. Okay, now here I'm getting this page. Okay, I'm getting this page. Now, obviously, what we have to do, we have to sign up. Okay, if you are having already, if you are having already one account in API, and sorry, in Postman, it's okay. If you don't have, suppose if I don't have, what I will do, I will click on this sign up for free, or obviously first I have to sign up. Okay, so okay, done. Which mail ID? Yes, here is which. Okay, okay. Phew. Okay, then what I will do. Okay, I guess all of you know how to do it, but still, there are some people who will face difficulty in this thing also. So for those people, I am signing up. Now let's see. Okay, 1998. Done. Okay. My name is Kushal. And what is my role? You can select any of these, like basically I'm a student. Okay. Continue. Okay. Here you can, if you want to download desktop agent or something, you can download, but I'm skipping for now. Okay. Done. Like this, we can sign up. Okay. Welcome to your personal workspace and all those things. Okay. Done. See, now I'm here. Okay. Here. Okay. Now I am in this my workspace. If you want to create your own workspace, if you want to create your own separate workspace, what you have to do, you just have to click in this drop down and you have to click on this create workspace, and then you can create one separate workspace here. Okay, like I will create one workspace. Choose spiders. Choose spiders. Summary nothing.
personal only you can access. This UI, okay. I will see the Swagger UI. What I okay, one sec. Intentionally, I'm not sharing my screen. Okay, so I have done. So I have one sec. I've shared this. I've shared the link of this API document. Okay, I've shared the link. Even if you're not able to type it, what you do, just go in. Like obviously, just go and click on this link. Directly, you'll be navigated to this Swagger Pet Store page. Okay, this is an API document for Pet Store. Pet Store is kind of shop. Okay, where we can purchase pets. Pets, all of you know. यही कुत्ता बिल्ली ठीक है. So from pet store we can purchase pets. It's kind of app. Okay, so we have one API document of pet store. Now what we will do, we will make use of we will make use of this API document, and we will do some API testing. Okay, now let's see. Like able, like is it visible? No, able to see my screen, getting it. Okay, done. Okay, so let's see what exactly we have to do now. See here, see here, see. Again, what I did, nothing, just sign up किया मैंने. साइन अप करने के बाद ठीक है. हाँ शुभम, आई विल टेल यू, दो we have to work together, but as of now just look into the screen. I will tell you what you have to do and when you have to do. Okay, as of now just look into the screen. Okay, done. सी आफ्टर साइनिंग अप, ठीक है. साइन अप करने के बाद मैं कुछ नहीं, मैं डायरेक्टली ये वाले पेज पे नेविगेट हो जाऊंगा. ये वाले पेज पे नेविगेट होने के बाद अगर मैं चाहता हूं तो मैं खुद का वर्क स्पेस क्रिएट कर सकता हूं. कैसे? मैं क्रिएट वर्क स्पेस पे दबाया, नेम लिखा जो भी वर्क स्पेस का मैंने क्यू स्पाइडर्स नाम दिया वर्क स्पेस का. और अगर आपको पब्लिक करना है जो भी है ना, खुद का एक क्रिएट वर्क स्पेस एंड टीम, या क्रिएट वर्क स्पेस एंड टीम पे क्लिक कर दो तो वो क्रिएट हो जाएगा. ठीक है, तो वैसे ही मैंने एक वर्क स्पेस बनाया, क्यू स्पाइडर्स की वर्क स्पेस का नाम है. ठीक है, अब यहाँ पे अपन इस वर्क स्पेस पे काम करेंगे. ठीक है. ओके, नाउ ये वर्क स्पेस पे आगे. बेसिकली वर्क स्पेस कैसा क्या रहता है पता है? जैसे फायर फ्लिंग में हम प्रोजेक्ट्स क्रिएट कर रहे थे, उस प्रोजेक्ट के अंदर कितने सारे वो नहीं, लाइसेंस है, लाइसेंस के अंदर कितने सारे प्रोजेक्ट्स रहते थे. वैसे ही मान लो एक लाइसेंस टाइप का है, अब इसके अंदर मैं बहुत सारे कलेक्शंस ऐड कर सकता हूँ. ठीक है, पहले तो पोस्टमैन क्या है. ठीक है, पोस्टमैन एक क्या एपीआई डेवलपमेंट टूल है, जहाँ पे मैनुअल टेस्टिंग भी हो सकती है और जहाँ पे ऑटोमेशन भी. ठीक है, but generally we are doing manual testing here. Obviously we are doing manual API testing in Postman. Okay, generally with the help of
Postman, we can create, like developers can create API document. Okay, and what we have to do as a test engineer, we just have to look into those API documents and we have to do testing. ठीक है, ठीक है, जैसे रिक्वायरमेंट्स देख के हम टेस्ट केसेस लिखते थे, ठीक है, टेस्ट केसेस देख के लिख के ऑटोमेशन करते हैं, वैसे ही हम लोग यहाँ पे एपीआई डॉक्यूमेंट देख के एपीआई टेस्टिंग करते हैं। ठीक है, तो एपीआई डॉक्यूमेंट कौन देता है? डेवलपर्स। कौन प्रोवाइड करता है? डेवलपर्स। तो वैसे ही एक एपीआई डॉक्यूमेंट डेवलपर ने प्रोवाइड किया है। एक कोई एप्लीकेशन है पेट स्टोर, पेट स्टोर एप्लीकेशन कैसा एप्लीकेशन, जहाँ पे हम लोग जनरली एक स्टोर है जहाँ पे हम लोग पेट्स को परचेज करते हैं या फिर सेल करते हैं, ऐसे टाइप का एक एप्लीकेशन है, उसका एपीआई डॉक्यूमेंट हमारे पास है। मतलब जब ये एप्लीकेशन का यूआई रेडी नहीं था, तब एक एपीआई डॉक्यूमेंट बनाया था डेवलपर ने डेवलप करते टाइम, और वही एपीआई डॉक्यूमेंट ये यहाँ पे अवेलेबल है, और इसी एपीआई डॉक्यूमेंट की हेल्प से हम लोग एपीआई टेस्टिंग करेंगे। ठीक है, गॉट इट ना। पोस्टमैन पे हमको क्या करना है? सबसे पहले वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज कंसंट्रेट हियर। ओके, व्हाट वी हैव टू डू हियर? Here we can see collections. ठीक है, here we can see collections. We just have to create new collection. How to create new collection? Beside this collections, we can see on this plus this add button over there. ठीक है, so we just have to click on this plus button. Okay, अभी कुछ नहीं करना है, अभी कुछ नहीं करना है। I'm repeating again and again. Don't do anything now. Okay, new collection पे मैंने क्लिक किया। ठीक है, अब कलेक्शन क्या है? कलेक्शन का नाम देना है। क्या नाम देना है? ठीक है, तो बेसिकली हम लोग किस में काम कर रहे हैं? पेट स्टोर में काम कर रहे हैं। तो हम लोग नाम दे देंगे यहाँ पे न्यू कलेक्शन को, हम लोग नाम दे देंगे पेट स्टोर। पेट स्टोर कैमल केस में। ठीक है, ये कैमल केस कहलाता है। यहाँ पे गैप नहीं दिया है मैंने, देखो पेट स्टोर, ये देखो स्मॉल, फिर स्मॉल केसेस, लार्ज केसेस, तो इस मिक्सचर को हम लोग कैमल केस बोलते हैं। ठीक है, तो मैंने कैमल केस में लिखा है पेट स्टोर। ठीक है, पेट स्टोर एक कलेक्शन मैंने क्रिएट कर दिया। ठीक है ना, ठीक है, कहाँ से क्रिएट किया? ये प्लस बटन दबाया, नाम दे दिया पेट स्टोर, सिंपल। ठीक है, now what next we have to do? Okay, now what next we have to do? As we can see, please focus here, as we can see here, view more actions। ठीक है, view more actions हम देख पा रहे हैं। ठीक है, तो बस आप इस पे क्लिक करो। ठीक है, इस पे क्लिक करते ही आपको बहुत सारे एक ड्रॉप डाउन मिलेगा जिसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं। यहाँ पे हमको सेलेक्ट करना है ऐड रिक्वेस्ट। यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना है ऐड रिक्वेस्ट। तो मैं क्लिक किया ऐड रिक्वेस्ट पे कि मैं अब रिक्वेस्ट भेजूंगा। देखना, हमने थ्योरी कंप्लीट की, अब देखो प्रैक्टिकल से उसको रिलेट करते हैं। मैं एक अब रिक्वेस्ट भेजूंगा पेट स्टोर के सर्वर पे, और फिर पेट स्टोर वाला सर्वर मुझे रिस्पॉन्स भी देगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक रिक्वेस्ट भेजेंगे। एक हमने कलेक्शंस बनाया पेट स्टोर के नाम से, अब हम रिक्वेस्ट भेजेंगे किसको? पेट स्टोर को। ठीक है, तो जनरली सबसे पहले, ठीक है, एसटीटीपी मेथड्स का मैंने बताया था। एसटीटीपी मेथड में, ठीक है, एसटीटीपी स्ट्रक्चर पढ़ा था हमने। एसटीटीपी मेथड भी चार, मतलब हम लोग कुछ एक्शंस कर सकते हैं उसमें। जैसे कि एक एक्शन होता है पोस्ट। ठीक है, एक एक्शन होता है पोस्ट। पोस्ट में जब भी हमको कुछ क्रिएट या फिर ऐड करना हो, तो इसलिए तब हम ये वाला ऑपरेशन चुनते हैं, ये वाली मेथड चुनते हैं, पोस्ट मेथड। ठीक है, अब जब भी हमने जो चीज क्रिएट की है उसको हमें देखना है, क्योंकि यूआई तो है नहीं। अगर यूआई होता तो हम वो चीज देख पाते, तो अब यूआई नहीं है तो वो चीज कैसे देखेंगे? तो उसके लिए एक ऑपरेशन है, उसके लिए मेथड है फेच करने के लिए। ठीक है, अगर हमको कुछ कोई चीज फेच करनी है, ठीक है, या फिर व्यू करनी है, तो हम गेट मेथड यूज करेंगे। ठीक है, एक मेथड होती है पुट। ठीक है, पुट होती है अपडेट करने के लिए। ठीक है, जब भी हमें जो चीज हम क्रिएट किए हैं उसमें अगर कुछ हमको अपडेट करना हो, तो हम पुट की हेल्प से अपडेट करते हैं। सपोज मैं एक सिंपल भाषा में बताता हूँ। एक आप लोग फेसबुक अकाउंट क्रिएट किए हो। ठीक है, फेसबुक अकाउंट क्रिएट किए। फेसबुक अकाउंट क्रिएट करने में क्या क्या लगता है? नेम, मेल, ठीक है, फुल, मतलब नेम, फुल नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, एज, और जेंडर, और फोन नंबर, ईमेल एड्रेस, मतलब कितना कुछ लगता है। ठीक है, तो अगर यूआई नहीं है तो हम उस, और हमको एपीआई टेस्टिंग करनी है, हमको एक फेसबुक में अकाउंट क्रिएट करना है, हमको बस टेस्ट करना है कि वो फेसबुक अकाउंट क्रिएट कर पा रहे हैं हम कि नहीं, ये चीज हमको टेस्ट करनी है। अब यूआई तो है नहीं, तो हम कैसे टेस्ट करें? एपीआई टेस्टिंग के हेल्प से। एपीआई टेस्टिंग के हेल्प से हम टेस्ट करेंगे कि वो चीज काम कर रही है कि नहीं, हम अकाउंट क्रिएट कर पा रहे हैं कि नहीं।
अब ऑब्वियसली हमको कोई चीज क्रिएट करनी है तो हमको कौन सा मेथड यूज करना है, पोस्ट। ठीक है, अब हमने कोई फेसबुक अकाउंट क्रिएट कर दिया। अब कभी कभी होता है कि मैंने को लिखना है विवेक, लिख दिया मैंने विनय। ठीक है, तो अब मुझे वापस से विवेक, मेरे को लिखना था विवेक, मैंने लिख दिया विनय। तो मुझे अपना अपना नाम मुझे अपडेट करना है। मेरे को अपना पूरा कुमार सिंह देना था, लेकिन मैंने बस दे दिया सिंह। तो मुझे वो चीज़ अपडेट करनी है। तो जब भी कुछ अपडेट करना हो तो क्या काम, कौन सी मेथड करेंगे हम, पुट। ठीक है, अब वैसे ही यूआई तो है नहीं, हम देख सकते नहीं, तो हमें देखना है कि जो हमने चीज़ मेथड लगाई थी पोस्ट क्रिएट करने के लिए, वो चीज़ क्रिएट हुई है कि नहीं। ठीक है, अब ऑब्वियसली हम कोई अकाउंट क्रिएट करेंगे, यूआई होगा तो देख लेंगे कि वो क्रिएट हुआ है कि नहीं, लेकिन यहाँ पे तो यूआई ही नहीं है, तो हम कैसे देखेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे एक गेट मेथड होता है कि उसके मेथड से, इस मेथड की हेल्प से हम देख सकते हैं कि वो चीज़, जो ऑपरेशंस, जो एक्शन हमने लिए थे, ठीक है, वो सर्टेन एक्शन, सर्टन एक्शन, सर्टेन व्हाट या सर्टेन एक्शंस परफॉर्म हुए हैं कि नहीं। ठीक है, तो इस चीज के लिए हम गेट मेथड यूज करते हैं। जैसे हमने कोई चीज क्रिएट की, वो क्रिएट हुई कि नहीं, हमने कोई अपडेट की, वो अपडेट हुई है कि नहीं, तो ये फेच कर रहे हैं बेसिकली हम, तो तब हम गेट मेथड का यूज करेंगे। ठीक है, अब वो अकाउंट हो गया पुराना, अब मुझे उसे करना है डिलीट, कि अब हो गया सारा, तो उसके लिए है डिलीट मेथड। ठीक है, डिलीट मेथड, डिलीट से कोई भी अकाउंट जो भी आपने बनाया है वो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये चार मेथड्स बेसिकली यूज होती हैं। ठीक है, एक मेथड और होती है, ठीक है, वो है पैच। ठीक है, पैच, पैच। ठीक है, पैच और पुट के हेल्प से हम लोग अपडेट करते हैं, और हमारे एपीआई डॉक्यूमेंट में मेंशन रहता है कि हमें पुट यूज करना है कि हमें पैच यूज करना है। ठीक है, सपोज डेवलपर ने बोला है कि नहीं, आपको पैच मेथड यूज करके ही किसी भी चीज को अपडेट करना है, तो हम पैच यूज करेंगे। और अगर उसमें एपीआई डॉक्यूमेंट में मेंशन है पुट मेथड का, तो हम पुट यूज करेंगे अपडेट करने के लिए। ठीक है, फिर भी अगर इंटरव्यूअर पूछते हैं कि पुट और पैच में डिफरेंस क्या है, तो आप बता दोगे ऐसे कि पुट ऑलमोस्ट सेम है पुट और पैच, लेकिन बेसिकली वही बता रहा हूँ कि ना एपीआई डॉक्यूमेंट में क्या मेंशन रहता है, उसके हिसाब से हम लोग वो मेथड चूज करेंगे। ठीक है, तो जैसे, लेकिन फिर भी अगर पूछे कोई, तो पुट होता है फुल अपडेशन के लिए, जहाँ की पैच यूज होता है पार्शियल अपडेशन के लिए। ठीक है, पार्शियल अपडेशन के लिए पुट यूज होता है फुल अपडेशन के लिए, और पैच होता है यूज पार्शियल अपडेशन के लिए। ये एक डिफरेंस है, अगर डिफरेंस पूछे कभी कोई, जनरली दे विल नॉट आस्क, बट स्टिल वी हैव टू नो दैट व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन पुट एंड पैच मेथड। ठीक है, तो पुट मेथड का बेसिकली जब भी फुल अपडेशन करना हो तो पुट, और जब पार्शियल अपडेशन करना हो, मतलब थोड़ा बहुत अपडेशन करना हो, तो पैच। ठीक है, बट बेसिकली जो भी एपीआई डॉक्यूमेंट में मेथड मेंशन है, उस मेथड के जरिए हम कोई भी चीज अपडेट करेंगे। ठीक है, बाकी दोनों ही मेथड्स अपडेट करने के लिए काम आती है। डन, क्लियर। नाउ अगेन कमिंग बैक टू पोस्टमैन। ठीक है, यहाँ पे अब सबसे पहले ऑब्वियसली हमको कोई पेट क्रिएट करना होगा। ठीक है, सबसे पहले हमको कोई पेट क्रिएट करना होगा। तो क्रिएट करने के लिए कौन सी मेथड है, टेल मी, क्रिएट करने के लिए कौन सी मेथड है, कम ऑन। पोस्ट, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, एग्जैक्टली, पोस्ट मेथड है। क्रिएट करना है हमको, कोई चीज ऐड करनी है, तो उसके लिए हमारे पास मेथड है पोस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देखोगे न्यू रिक्वेस्ट। ठीक है, कि एक रिक्वेस्ट कि कैसी टाइप की रिक्वेस्ट भेज रहे हो आप सर्वर को। ठीक है, तो हमको क्या करना है, हमको पेट को क्रिएट करना है। तो हम ये एडिट बटन दबाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे क्रिएट पेट। ये भी चीज मैं कैमल केस में लिखा हूं। ठीक है, क्रिएट पेट, क्योंकि हियर आई हैव टू क्रिएट समथिंग, हियर आई हैव टू क्रिएट पेट फर्स्ट, देन ऑब्वियसली आई विल डू अपडेशन एंड ऑल दोस थिंग। ठीक है, तो हमने तो अपने को पहले पेट को क्रिएट करना है, इसीलिए मैंने रिक्वेस्ट का नाम दिया है कि कैसी टाइप की रिक्वेस्ट आएगी सर्वर के पास, क्रिएट पेट, कि हम कोई पेट क्रिएट करना है। डन, ओके, एंटर, क्रिएट पेट हो गया। इसका नाम किसका, रिक्वेस्ट का नाम। ठीक है, अब मेथड कौन सी यूज हो रही है, पोस्ट मेथड। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ठीक है, यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लोगे पोस्ट, मैंने सेलेक्ट कर लिया पोस्ट। ठीक है, नाउ जस्ट
uh, one sec. uh, हाँ, here you can see here you can see HTTP रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स जो मैंने पढ़ाया था, HTTP स्ट्रक्चर पढ़ाया था कि हेडर बॉडी रहता है, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स में रिक्वेस्ट में HTTP मेथड, वेब यूआरएल, कंटेंट टाइप, कुकीज, ये सब रहता है। ठीक है, तो HTTP मेथड कौन सी हो गई, ये सब पोस्ट, गेट, पुट, पैच, डिलीट, ये सब HTTP मेथड्स हो गई। ठीक है, अब क्या मैंडेटरी है, HTTP मेथड मैंडेटरी है डालना, M स्टैंड्स फॉर मैंडेटरी। ठीक है, तो मैंडेटरी है डालना। ठीक है, तो मैंने पोस्ट मेथड डाल दी क्योंकि मैं यहाँ पे पेट क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, अब ऐसे ही दूसरा चीज है वेब यूआरएल, कि वेब यूआरएल दो। नाउ नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल गिव एंटर यूआरएल और पेस्ट टेक्स्ट। यहाँ पे मेरे को यूआरएल देना है। ठीक है, तो बेस यूआरएल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, बेस यूआरएल देना। ठीक है, ये मतलब वही वेब यूआरएल। ठीक है, देना। यहाँ पे क्या पूछा है, दूसरा वेब यूआरएल। तो मैं वापस एपीआई डॉक्यूमेंट जाऊंगा, एपीआई डॉक्यूमेंट में सब कुछ मेंशन है, मेथड से लेके सब कुछ मेंशन है। ठीक है, अब एपीआई डॉक्यूमेंट या स्वैगे डॉक्यूमेंट को रीड कैसे करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको ढूंढना है यूआरएल, सब सब एप्लीकेशन, सब कोई भी एपीआई डॉक्यूमेंट का अलग अलग। कहीं कहीं अभी हम लोग और आगे जाके देखेंगे, और बहुत सारे एपीआई डॉक्यूमेंट्स में हम लोग काम करेंगे। ठीक है, ये तो पेट स्टोर का हो गया, कुछ गिटहब पे भी काम करेंगे अपन आगे चल के। ठीक है, उसमें देखेंगे कि कितना हम लोग को अलग अलग पेजेस पे नेविगेट करना पड़ता है बेस यूआरएल ढूंढने के लिए। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे हमको यूआरएल ये मिल गया। ठीक है, ये देखो यूआरएल, बेस यूआरएल पेट स्टोर पे आप लोग यूआरएल यहाँ से मिलेगा आप लोगों को। ठीक है, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लोर्ड, सो आई एम टेलिंग यू दैट यू विल गेट बेस यूआरएल फ्रॉम हियर। ठीक है, ये बेस यूआरएल मिल गया, बस इसको आप कॉपी करो। ठीक है, इतने पार्ट को आप कॉपी करो, वापस से आओ पोस्टमैन पे और यूआरएल को पेस्ट कर दो। ठीक है, यूआरएल को पेस्ट कर दो। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग एपीआई डॉक्यूमेंट देखो, अभी हम लोग किससे डील कर रहे हैं, अभी हम लोग डील किससे कर रहे हैं, अभी हम लोग डील कर रहे हैं पेट्स से। हम पेट को क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, बेस यूआरएल इज नथिंग वेब यूआरएल। ओके, वेब यूआरएल वी ऑलरेडी अंडरस्टैंड कि मेरे को इस पे नेविगेट करना हो। ठीक है, वेब यूआरएल क्या रहता है, यूनिक एड्रेस, आई ऑलरेडी टोल्ड यू। ओके, नाउ ठीक है, तो कि बेसिकली अभी हम किससे डील कर रहे हैं, अभी हम पेट से डील कर रहे हैं, पेट्स से डील कर रहे हैं। ठीक है, तो हम यही वाले सेक्शन में, ये पेट का सेक्शन है, देखो ये पूरा एक एपीआई डॉक्यूमेंट है जिसमें देखो पेट का दिया, एवरीथिंग अबाउट योर पेट्स। ठीक है, यूजर, ऑपरेशंस अबाउट यूजर। ठीक है, और स्टोर, एक्सेस टू पेट स्टोर ऑर्डर्स। बट राइट नाउ वी आर डीलिंग ओनली विथ पेट्स। ठीक है, तो हमें इतने ऑपरेशंस पे ध्यान देना है। ठीक है, सिर्फ इतने, बिकॉज राइट नाउ वी आर डीलिंग विथ ओनली विथ पेट्स। ठीक है, सो वी हैव टू फोकस मोर हियर। ओके, इन दिस सेक्शन। यहाँ से स्टोर के देखिए, स्टोर के लिए दिखाया गया है कि पोस्ट गेट डिलीट, ये वो यूजर के लिए दिया गया है। ठीक है, लेकिन अभी हम लोग डील कर रहे हैं पेट से, तो सिर्फ हम लोग इतने ही व्हाट मेथड्स पे और सेक्शंस पे ध्यान देंगे। ठीक है, अब मेरे को पोस्ट यूज करना है। ठीक है, मैं पोस्ट यूज कर रहा हूँ। ठीक है, पोस्ट मेथड यूज कर रहा हूँ, किसके लिए, क्रिएट करने के लिए। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है पोस्ट मेथड है, अपलोड्स एन इमेज, नहीं मुझे इमेज अपलोड नहीं करना है, मेरे को एक पेट को क्रिएट करना है। ठीक है, या फिर ऐड करना है। तो ये देखो दूसरा पोस्ट मेथड स्लैश पेट, ऐड अ न्यू पेट टू द स्टोर। यस, मेरे को एक नया पेट को ऐड करना है, यानी मेरे को बेसिकली एक पेट क्रिएट करना है। ठीक है, तो मैं इस पे क्लिक करूंगा। ठीक है, मैं इस पे क्लिक करूंगा, दिस थिंग आई वांट। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे आप लोग को, तो पूरा आप लोग को बॉडी मिल जाएगा कि कहाँ पे आप लोगों को कौन सी बॉडी कहाँ पे अटैच करनी है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे मेथड यूज हुआ है पोस्ट, और ये कहलाते हैं एंड पॉइंट्स। ठीक है, ये कहलाते हैं एंड पॉइंट्स। मैं उस दिन पढ़ा रहा था, उस दिन पढ़ाया था मैंने, मतलब पढ़ाया क्या था, बताया था कि बेसिकली यूआरएल बनता है URI प्लस URN, URN। ओके,
यू URL प्लस URL इज इक्वल टू URI प्लस URN। URL हमको पता है, URI क्या होता है? URI जहाँ पे सारे रेस्ट वेब सर्विसेज के API स्टोर होते हैं, मतलब बेसिकली वहीं पे स्टोर होते हैं सारे जितने भी ऑल रेस्ट वेब सर्विसेज API स्टोर्स इन UI फॉर्मेट। करेक्ट नो? URI फॉर्मेट, यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफाई, ऑलरेडी टोल्ड यू। ठीक है, और एक और था URN। ये URN होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स नंबर, वी ऑल्सो कॉल इट एज एंड पॉइंट्स। ठीक है, एंड पॉइंट्स देना किसी भी API मतलब कहीं भी हम लोग API टेस्टिंग कर रहे हैं तो हमको बहुत सारी चीज़ें जो मैंडेटरी होती है, जैसे मेथड हो गई, ठीक है, HTTP मेथड, ठीक है, वेब URL हो गया, बेसिकली ये URL एक देना बहुत इंपॉर्टेंट है, और एंड पॉइंट्स देना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना एंड पॉइंट्स दिए वो मेथड, वो जो एक्शन है वो परफॉर्म नहीं होगा करेक्टली। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पे पोस्ट के लिए एक पेट क्रिएट करने के लिए या फिर एक पेट ऐड करने के लिए हैश टैग पेट एक एंड पॉइंट है। ठीक है, सो व्हाट आई विल डू, आई विल कम बैक टू माई पोस्टमैन। ओके, आई विल राइट स्लैश पेट। ठीक है, स्लैश पेट मैंने लिखा। ठीक है, नाउ what I will do, I will just save it and I will send it. So, okay, please focus here, very important. I will just save it and I will send it. Let's see what response I will get. See, 405 method not allowed. ठीक है, ये मेथड ही अलाउड नहीं है। देखो ये होते हैं स्टेटस कोड्स। ठीक है, अब एक एक चीज आप लोग देखो, यहाँ देखो HTTP रिस्पॉन्स की हमको रिस्पॉन्स क्या मिल रहा है सर्वर पे। ये रिक्वेस्ट मैंने भेजी, वो सर्वर पे गई, सर्वर पे वो रिक्वेस्ट एग्जीक्यूट हुई और हमको रिस्पॉन्स मिला स्टेटस कोड। स्टेटस कोड क्या होता है? जिनसे हमको पता चलता है कि सर्वर ने रेस्पॉन्स क्या दिया है। ठीक है, और मैंने बोला था कि 200 के अगर स्टेटस कोड है तो वो सक्सेसफुल होंगे, 400 होंगे तो क्लाइंट साइड एरर है, 500 होंगे तो सर्वर साइड एरर है, मतलब कि कुछ सर्वर में प्रॉब्लम है। लेकिन ये कौन से अंडर आ रहा है? 405 मेथड नॉट अलाउड। ठीक है, मतलब ये क्लाइंट साइड एरर है। मतलब क्लाइंट साइड क्या, मतलब हमारे से गलती हुई है। ठीक है, तो हमने क्या गलती की है ये चीज देखते हैं। ठीक है, हमने सबसे पहले कोई URL में प्रोटोकॉल होना चाहिए। हमने क्या प्रोटोकॉल दिया है? हमने बस यहाँ से कॉपी कर लिया और पेस्ट कर दिया, लेकिन हमने ये चीज़ नोटिस की कि यहाँ पे प्रोटोकॉल नहीं है। ठीक है, और अब बेसिकली हमको यहाँ पे प्रोटोकॉल देना है। देखो ये वाले API डॉक्यूमेंट में क्या प्रोटोकॉल यूज हो रहा है, ये किस पे डिपेंडेंट, ये क्या है? HTTPS। अगर मैं इसको HTTP कर दूंगा, ये देखो तब चेंज हो जाएगा थोड़ा। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे अपन यूज क्या कर रहे हैं? HTTPS। ठीक है, तो HTTPS की यूज कर रहे हैं। HTTPS के बेसिस पे ये सारे एंड पॉइंट्स और सारे एक्शंस हैं। ठीक है, तो मैं जाऊंगा और यहाँ पे बस प्रोटोकॉल नेम दे दूंगा एक, दैट HTTPS कोलन। ठीक है, नाउ लेट्स सी। ठीक है, now let's see, now I will obviously, first of all it is very important that we have to save it. ठीक है, first of all we have to save it and then we will send it. ठीक है, अब देखो क्या रहा है, ये सारे एक बार आप लोग ये सारे वो अ, क्या कोड लिख लो अपने नोटबुक में। ठीक है, अगर मैंने प्रोटोकॉल नहीं दिया था तो क्या आ रहा था? 405 मेथड नॉट अलाउड। यहाँ पे हम देखते हैं रेस्पॉन्स क्या हमको मिला है। एक्चुअली हमको क्या मिला है, ये देखो वर्जन 1.8 एनकोडिंग स्टैंडर्ड API रिस्पॉन्स, कुछ नहीं मिला है रिस्पॉन्स। मेथड ही गलत डाली हमने, मेथड जो डाली उस बेसिस पे ये एक्शन गलत डाला है हमने। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग ये अपने नोटबुक में लिख लो 405 मेथड नॉट अलाउड, क्योंकि इंटरव्यूअर में आस्क यू लाइक व्हाट आर द स्टेटस कोड्स दैट यू फेस व्हेन यू आर डूइंग API टेस्टिंग। ठीक है, सो दिस फर्स्ट वन 405 मेथड नॉट अलाउड। ठीक है, ये अपने नोटबुक में प्लीज आप लोग लिखो, नहीं तो वेट आई विल 405, यस दीपक इट इज क्लाइंट साइडर, करेक्ट, मेथड नॉट अलाउड। ठीक है, ये पहला स्टेटस कोड हमको मिला। ठीक है,
मेथड नॉट अलाउड, पहला स्टेटस कोड मिला। अब ये क्यों मिला? क्योंकि हमने प्रोटोकॉल प्रोटोकॉल मिसिंग ऐसा बोल देते हैं, प्रोटोकॉल मिसिंग। बट बेसिकली हाउ यू हैव टू टेल कि जो हमने मेथड डाली थी, ठीक है, कोई भी स्पेसिफिक मेथड हमने डाली थी। देखो यहाँ पे आप लोग हल्का सा कर्सर अपना माउस ओवर करोगे ये मेथड के ऊपर तो आप लोग को मिलेगा, a request was made of a resource using a request method not supported by that request, for example using get on a form which requires data to be presented via post, or using put on a read only resource। ओके, बेसिकली बस ये बता देना कि पहला 405 मेथड नॉट अलाउड मिला था क्योंकि हमने प्रोटोकॉल नहीं दिया था यूआरएल में, कुछ चीज इनकम्प्लीट थी उस पर्टिकुलर मेथड में, इसीलिए हमको एक स्टेटस कोड मिला, मेथड नॉट अलाउड। ठीक है। नाउ व्हाट इफ आई कैसे प्रोटोकॉल में दिया HTTPS कोलन डबल फॉरवर्ड स्लैश, ठीक है। ये देखो यहाँ पे HTTPS है, इसीलिए मैंने यहाँ पे HTTPS दिया, एक प्रोटोकॉल कोलन डबल फॉरवर्ड स्लैश, एक जो यूआरएल का सिंटैक्स होता है वो सिंटैक्स को मैंने फॉलो किया, वो फॉर्मेट को मैंने फॉलो किया। ठीक है। अब मैं सेव करता हूँ और मैंने सेंड किया, तो मुझे कौन सा स्टेटस कोड मिला? 415 अनसपोर्टेड मीडिया टाइप। ठीक है। कौन सा मिला मेरे को? 415 unsupported मीडिया टाइप। ठीक है। ये किस लिए मिला? फर्स्ट ऑफ ऑल ये मिला प्रोटोकॉल में से, ठीक है। ये हम लोग को मिला अनसपोर्टेड मीडिया टाइप की। अब हम लोग मेथड कौन सी, प्लीज कंसंट्रेट हियर, प्लीज फोकस हियर, ठीक है। यू डोंट इवन हैव टू राइट इन योर नोटबुक नाउ, आई एम जस्ट राइटिंग इन माय नोटपैड, आई विल शेयर इट टू यू, डोंट वरी। ओके, नाउ फोकस हियर। यहाँ पे हम कौन से मेथड यूज कर रहे हैं? पोस्ट। ठीक है। पोस्ट मेथड का क्या काम होता है? कोई भी चीज क्रिएट करना, कोई भी चीज ऐड करना, ठीक है। तो क्या हम कुछ वैल्यू पास कर रहे हैं कि वो चीज क्रिएट करने के लिए कि बस पोस्ट मेथड यूज की वो चीज क्रिएट हो गई ऑटोमेटिकली? तो थोड़ी हो जाएगा, कुछ ऑब्वियसली कोई वैल्यू पास पास करना होगा कि क्या चीज आपको क्रिएट करना है। हाँ, आप पेट क्रिएट करना चाहते हो तो बॉडी कहाँ है पेट की, कि ऑब्वियसली एक जेसन फॉर्मेट में प्रॉपर कुछ फॉर्मेट में बॉडी होनी चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख रहे होगे बॉडी का, ठीक है। यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख रहे होगे बॉडी का, यू जस्ट प्लीज क्लिक ऑन दिस बॉडी। ठीक है, यू क्लिक ऑन दिस बॉडी एंड हियर यू हैव टू सेलेक्ट रॉ। ठीक है, हियर यू हैव टू सेलेक्ट रॉ, रॉ डेटा मैं डाल रहा हूँ। ठीक है। तो रॉ पे, रॉ रेडियो बटन पे मैं क्लिक करूंगा, मैंने रॉ रेडियो बटन पे क्लिक किया। ठीक है। अब यहाँ पे देखना आप लोग, यहाँ पे आप लोग देखोगे HTTP मेथड, वेब यूआरएल, कंटेंट टाइप, रॉ मेथड यूज सेलेक्ट करना है अनुपम। ओके, जस्ट रिमेंबर कंटेंट टाइप ऑप्शनल। ठीक है। यहाँ पे कंटेंट टाइप आप लोग पूछ रहे थे ना कि सर कंटेंट टाइप नहीं आ रहा था समझ में, तो मैं बोला था कि जब आप लोग करने लगोगे तो आपको समझ में आएगा। देखो यहाँ पे वन सेकंड जस्ट गेटिंग वन कॉल, इंपॉर्टेंट कॉल।